Yeah, sure. So, hello guys. Today we have with us Mr. Jatin Tyagi, sir. He is the head of Pancration Fitness Academy. Yes, sir. And you have also been an ex-footballer, as you say, right? So, can you Yeah, explain आपकी journey क्या थी as a from a footballer to a head of a fitness academy जो एक क्या बोल सकते हैं हम entrepreneurship. entrepreneurship तो है ही और you're also animal welfare, you're also into animal welfare, children and women empowerment, disaster relief and humanitarian Mm. aids. So how did you go Yeah, from a footballer to there? yeah, definitely. First of all, starting from my football background, uh, I started the football when I was in the eighth year. So I left my home first of all. Oh, So during that, I got the playing chance, and initially it's around 20 or 25 years journey where I firstly cracked junior India, then senior. I played with Baichung and Ranedy in the East Bengal. I played that, and then unfortunately I was not in the main team India that you guys mostly see in the matches due to lack of my some injuries, you can say that. So I skipped that, and later on that I joined as a coach, means okay. But when I found many players, or you can say many students that time, or children, you can say, they are not fit that time. So mostly in the Delhi NCR area or some cities, you can say that high, you can say smart cities, you can say that. So children are not that much fit because they are joining football as a not a passion, not a sports, not like a just fitness freak. You can say just want to lose their fat or anything else. So I started that initially I have to work on their, you can say, fitness start journey, you can say. So after that I got opportunity in the Fit India in 2019, and then due to my, you can say, my network or someone praised me, you have to start your own firm. So that I started the Penetration Fitness Academy. It's a yeah. private limited company. So we have started around, we deal in many sports centers, free training courses, as well many sports persons associated with us. But later on, like when COVID comes, so I started even an NGO that called an MPFA. So Yeah. PFA we get recognition by more than 30 ministries, and 31st is our Ministry of Sport Affairs, Youth Sport Affairs. So on the Oh, behalf of that, on the behalf of that, we uh, have a target, because mostly BFA people are confused that it's a people for animal, but actually it's not people for animal. That is only for organized by, lead by Menka Gandhi ma'am, but it is अच्छा. a lead by me, and it's a full form is preservance for all, means sabhi ka surekshan, you can say that. I thought it's Pancration Fitness Academy. मुझे तो वही लगा. No, yeah, you can say pancreation is a word of, you can say it's a means judo, you can say fight, in the Yeah. हाँ हाँ. Indian language, it's a different. हम्म. So actually, when we are registered in a company, na, in the MCA, Ministry of Corporate Affairs, you don't get what you want. I'm telling about the name, even trademarks. हाँ So हाँ. whatever I got, so I just I don't want to lose, so I just stop it, because it's my fourth or fifth time that I got, because some are rejected by the higher authority of the Yeah. MCA. सर मुझे वही पूछना था कि why are they rejected? मतलब is the name already Uh, taken इसलिए कि what's the exact no, no, reason? no. एक्चुअली इनिशियली nowadays ऐसा कुछ हो गया है कि पहले लोग ले लेते थे, जैसे कि आपने इंडिया यूज करा पर्टिकुलर स्टेट का, देयर आर मेनी सम कहना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, बट सम ऐसे एसोसिएशंस आ गई हैं, सब ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो डिच करती हैं पर्सन्स को, या ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक सम SGFI, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम ऑफ इन द मेन SGFI है, उसके नाम पर कोई अगर अपना फर्म खोल दे रहा है, मेन जो SGFI है वो दूसरा है। तो अगर हम्म. कोई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट ऐसा बनाता, तो जो जिनको अवेयर नहीं है वो उसमें वहां पर जाते हैं, दे डिमांड फॉर मनी एंड तो इसके लिए इन्होंने एक डाल दिया कि आपको जो मिलते जुलते नाम है, जैसे प्रोफेशनल इंडिया या कुछ या पर्टिकुलर नेशनल जो है, हाँ वो तो सब कोई भी नहीं यूज नेशनल कर या सकता. कुछ भी कम्युनिटी बल, तो वो उसको हम्म. रिजेक्ट कर देते हैं। बराबर. सो दैट्स व्हाई ये मेरे माइंड में अगर करना था फिर ये डाल देते हैं। फिर मेरे साथ में बहुत सारे फिटनेस फ्रीक भी थे, मैंने स्पोर्ट्स पर्सन थे जो खुद इंडिया में रिप्रेजेंट कर चुके अलग अलग। तो फिर हमने ये नाम हमें मिला तो हमने ले लिया। और अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें हमारे अराउंड मैंने 30 से 40 जो हमारे रिप्रेजेंट किया उनको स्पॉन्सर किया है, क्योंकि हम नाम वाओ. रिवील नहीं करते हैं, बट उसमें आए थे तो हमने किया।
तो जितना हमसे हो पाए हम करते हैं। तो फिर बट ये मैंने अपने एनजीओ के तौर पे किया है, पीएफए जो है प्रिजर्वेंस फॉर ऑल, बट यू कैन से पेनक्रेशन, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, क्योंकि ये रजिस्टर्ड हमने पीएफए ही कराया है। पीएफए ही कराया, तो हाँ हाँ। उसमें हाँ उसमें हम लोग जो हमारा जो मेन थोड़ा पहचान बनाने में थोड़ा सा डेफिनेटली वो पीपल फॉर एनिमल, जो एनिमल वाले हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर, यू कैन से दैट, बट वो फील्ड है, तो लोगों को जो ऑडियंस है उनको समझने में प्रॉब्लम आता है। हमारा मेन है कि स्पोर्ट्स डेवलप करना फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू एडवांस लेवल। इवन हम्म। इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट भी लाते हैं, बजट भी लाते हैं कि हमें फुटबॉल को फ्रॉम द ग्रास रूट मतलब बेसिक लेवल से लेकर एडवांस में कैसे करना। मेरा ऑल्सो छोटा सा सर, जो भी। मैंने हम्म, एक देखा है कि आप मतलब जैसे अभी यूके में आप देखोगे, कोविड में था तो आर्सेनल लोगों को मास्क बांट रहा था, वैक्सीनेशन करा रहा था। हम्म, सो यू वांट टू, जी। आई थिंक देख के तो लग रहा है कि यू वांट टू मिक्स द फुटबॉलिंग एंड द कम्युनिटी पार्ट ऑफ इट टुगेदर, कि ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड भी हो और फुटबॉल को भी प्रोग्रेस हो, और ये दोनों हैंड इन हैंड चले। या फुटबॉल भी तभी चलेगा जब बाकी चीजें साथ चलेंगी, बिकॉज हम भी एक हम्म। कम्युनिटी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमने कम्युनिटी को डेवलप किया। और मैंने बहुत सारी एनजीओ को देखा है, तो वो लोग पर्टिकुलर काम थोड़ा कम करती हैं, दिखाती ज्यादा है। तो हम लोगों ने काम किया है, मैं नहीं कर रहा, हमने बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग हम कर रहे हैं धीरे धीरे। इवन हम लोग अभी भी ओपन है कि कोई अगर रियल में डेडिकेटेड है सोशल वर्क में, तो वो डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकता है, तो हम उसे अपने साथ रखते हैं, ज्वाइन कराते हैं। और हम्म। हमारा अभी तक 8 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। तो कौन अभी से? प्लानिंग है कि 8 स्टेट्स दिल्ली? के नाम बताओ। आई थिंक दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र पता है दिल्ली, मुझे। हरियाणा, उसके महाराष्ट्र, उसके राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, ओ, उड़ीसा, झारखंड। अच्छा, वाह एंड वाह अभी वाह। प्लानिंग चल रहा है जम्मू में, और हिमाचल में भी हम स्टार्ट कर देंगे विद इन दिस और मे बी नेक्स्ट वीक। वीक में कह रहा हूँ मैं, मंथ में नहीं। तो हमारा टारगेट है कि इस ईयर तक हम लोग 23 या 24 स्टेट और यूटीज इंक्लूडिंग कर लेंगे, क्योंकि अंडमान हाँ में तो रिसेंटली मैं नवंबर में था ही वहाँ पर, मैं वहाँ की संतोष ट्रॉफी की टीम का बिल्डअप किया वहाँ पे, मैं एसटीओ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर मुझे जो उनके स्टेट एसोसिएशन है उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। सर, तो ये है। फ्रैंकली आई एम अशेम्ड टू टेल यू, मुझे पता नहीं था अंडमान की एक स्टेट टीम भी है जो संतोष ट्रॉफी में खेलती है। देखिए अभी बहुत कुछ है इंडियन फुटबॉल में, बहुत चीजें हैं जो हमें कहना नहीं चाहिए। अंडमान की टीम है वो, क्या हुआ था, वो बिल्कुल डेड हो गई है। बिकॉज जो एक छोटी सी बात है कि एसोसिएशन को अगर स्पोर्ट्स पर्सन चलाएंगे तो अच्छी चलेगी। तो वहाँ पे पुलिस चलाने वाला नहीं था, कोई पॉलिटिशियन या कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, वो क्या चलाएगा, वो अपने प्रोफेशन पे काम देगा। तो वो बिल्कुल डेड हो गई थी, मीन्स के खत्म ही हो गया था वो। तो वहाँ पे कुछ एक्टिव लोग आए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो टीम वर्क था सबका, तो उसमें हम साथ में काम किया उनके। तो जो उनके मेन सेक्रेटरी हैं अभी, तो मिस्टर संजय मैशवाक करके हैं, एंड ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, डेफिनेटली वेरी पैशनेट अबाउट द फुटबॉल। तो उसमें काम किया, तो मैं वहाँ पे रहा, तो हमने स्टेट संतोष ट्रॉफी का टीम खड़ा किया है। बट ड्यू टू आज का कि कोच का ये क्राइटेरिया होना चाहिए कैंप के लिए, तो हम वो तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है, क्योंकि आजकल कोर्स। कोचिंग भी दूसरा हो गया, या कोच लाइसेंस यू कैन से दैट। सर एक बात कहूँ क्या, मतलब थोड़ा डार्क जी, जोक होगा, बट लोग कहते हैं अंडमान में कैनिबल्स है, लेकिन असली कैनिबल्स तो एएफएफ निकले। हाँ यू कैन से दैट। हाँ ये बात सही है, बट हमारा काम ये होता है कि देखो हमें पॉजिटिविटी रखनी है, हम लोग पेशेंस रखने में काम करना है, क्योंकि हमारा मेरा फ्रेंकली मेरा विजन तो है कि इंडियन फुटबॉल को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। हम्म। जो बहुत सारे मेरे होते हैं इंटरव्यू, डिबेट भी होते हैं फ्रेंकली कि सबसे जो इजी हो, जिसपे मेरे को हंसने का मन करता है, वो है कि इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं कर जा रहा। तो मैं सिंपल एक ही बोलता हूँ कि जाए ना जाए वो अलग बात है, बट ये कि आप लोग पहले देखें कि आर यू रेडी फॉर दैट। ना, हम्म। वर्ल्ड कप बहुत छोटा बड़ा ले लेते हैं, बट क्या हम लोग तैयार हैं? हर कोई नीरज चोपड़ा बनना चाहता है, इवन हाँ हाँ। आपके नेबर में भी होगा, बट क्या उसको आप भेजना चाहेंगे प्रैक्टिस पे, या उस जो ट्रेनिंग की है उसका और वो दस एक परसेंट भी छलांग में टाइम डायरेक्ट नहीं देते हैं? पहुंच सकते हम, हमें नहीं स्टेप्स नहीं, फॉलो उसका करने इतना, पड़ेंगे। उसके इतने ईयर की जर्नी है, तो आप उसे फ्रिक्शन में नहीं करते। एक इसमें कहना चाहूंगा, छोटी सी बात है कि सब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, उसकी शाइनिंग देखते हैं, बट जो उसके पीछे का जो उसका सेक्रीफाइस जो है, जो उसने किया है, वो बराबर। नहीं कोई देखता। या हर हम्म। कोई बोलता है ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। तो हम्म। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, तो लेकिन उन्होंने बोला कि ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज नहीं होती, लेकिन मेसी ओवरनाइट बोला था, सक्सेस के लिए। मेसी मैसी ने बोला बोला था। था। हाँ हाँ, हाँ मैं कि सुनता रहता हूँ नोबडी इज एन कि ओवरनाइट 20 सक्सेस, या यू हैव टू ट्वेंटी कीप फाइव ईयर वर्किंग। लगते हैं। हाँ या हाँ हाँ। 20 to 25 ईयर लगते हैं ओवरनाइट सक्सेस के लिए। बेस्ट बराबर। एग्जांपल देखिए आप, क्रिस्टियानो, जिसका कोई पीछे नहीं था, एंड ही इज द नंबर वन इन द वर्ल्ड, नॉट इन पर्टिकुलर एरिया। सो ये है। हाँ तो हम लोगों का ये विजन, हम इस पे लगे हुए हैं, और हमारा टारगेट है कि हम खुद का एक फ्रेंचाइजी टाइप में बनाएं, कि एक हम खुद का एक टीम लॉन्च करें, और अभी कुछ चीजें पाइपलाइन में है।
तो मैं नेम तो रिवील नहीं कर पाऊंगा अभी, बट हो जाएगा तो सब पता चलेगा। जैसे हम खुद का एक ISL का भी प्लानिंग है, कुछ उसमें डालें, कुछ सेकंड डिवीजन डालें, बॉयज गर्ल्स के लिए भी करें, और उसी के ब्रांच फ्री ऑफ सेंटर खोलें जिसमें एनीबडी कैन कम एंड ज्वाइन। ट्रायल नहीं होता, कैंप बेस पे होता है, ट्रायल तो बड़ी ट्रायल, क्योंकि वो विद इन फ्रिक्शंस ऑफ मिनट में हम लोग जज नहीं कर पाते कैसा है, तो उसको हम पूरा टाइम देते हैं कि अपना एक्सपोज करे, पूरा अच्छे से दिखाए। अगर वो है तो डेफिनेटली सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते तो बेसिकली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप खोलोगे जहाँ पे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, दे कैन ट्राई आउट, वो हैं, कुछ एनीबडी दिनों के कैन कम। लिए, वो हम्म कुछ दिनों के लिए पता चलेगा हाउ दे आर, हाउ गुड दे प्ले, हाउ दे कैन जेल विद हम्म अदर्स, और फिर उसके या बाद आप यू आर प्लानिंग टू मेक अ टीम या फिर एक अकेडमी या बोथ? नहीं, वो क्या है जो हमारा अभी लॉन्ग विजन जो हमारा है कि हम अपना एक मेन सेंटर खोलेंगे, मैं उसकी बात नहीं करता अभी। अभी हम क्या है कि हमारा मैक्सिमम की जहाँ जहाँ पे, क्योंकि मैंने 15 से मोर देन 15 स्टेट एंड UT इंक्लूडिंग मैंने अब तक डेवलप किया है फुटबॉल को। तो मेरा विजन है कि अगर हम मैक्सिमम स्टेट और UT को कवर करके इस तरह से अपना सेंटर खोलें, यू कैन से अकेडमी, यू कैन से, वहाँ पर हम बच्चों को उसी एरिया के, फॉर एग्जांपल यूपी है तो यूपी जोन का, हरियाणा थी हरियाणा जोन के ही बच्चे आए और वो वहाँ पे कैंप में रहे 15 या 20 दिन, जैसे भी रहता है, तो उनका रेजिडेंशियल बनाएंगे इसको हम। अगर उसमें प्लानिंग होता है तो जो बच्चे उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, हमने वहाँ से मान लो 80 बच्चे लिए, पूरे हरियाणा की बात करें एग्जाम्पल की, तो उन हरियाणा बच्चों को सब कुछ हम आगे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, लाइक ट्रेनिंग एंड ऑल, जो भी करना मतलब अपने पास रखेंगे उनको। और फिर उसमें ऐसे अलग अलग स्टेट्स में हम करेंगे, तो हमारा अगर हो जाता है फिर हम डेफिनेटली एक बड़ा अपना लॉन्च करेंगे, जो सेकंड डिवीजन आई लीग बोल दीजिए, या जो मैं बता रहा हूँ कि ISL में हमारा प्लानिंग है, और गर्ल्स के लिए भी सिमिलर है। तो जहाँ पे हमें लगा कि कंपटीशन थोड़ा कम है, जहाँ पे हमारे बच्चे की एंट्री है, तो हम बेस्ट ऑफ आवर ऑल द स्टेट प्लेयर जो भी हर अकेडमीज के हैं, तो उनमें से एक टीम बनाएंगे जो हमारी अगर रिप्रेजेंट करेगी, और होपफुली कि वो मेरे, क्योंकि मेरे खुद बच्चे इंडियन टीम में है अभी ऑलरेडी बहुत सारे, तो वो भी जाएं आगे। तो ये मेरा है कि थोड़ा लॉन्ग विजन है, बट हम लोग इस पे लगे हुए हैं, मेरी टीम लगी हुई है। और इसके साथ साथ में जैसे आपने हमारे थोड़ा अलग है कि नंबर 1 स्पोर्ट डेवलपमेंट में हमारा NGO काम कर रहा है, के बाद में थोड़ा सा एनिमल वेलफेयर का, कि कोई बोलते हर कोई है, हर कोई टैग लगाता है सोशल मीडिया पे एनिमल लवर, बट कोई होता नहीं। किसी को वोंड कोई जख्म या कुछ ब्लीडिंग हो रहा तो कोई दूर भागते हैं लोग, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एनिमल लवर होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, बट बहुत लोग हमें मिलते हैं, कोई कर नहीं करता। उसके बाद में थोड़ा सा है कि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, उनके राइट्स, क्योंकि कुछ एरिया हैं फ्रेंकली जो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला है यूपी एंड बिहार में, वहाँ नॉर्थ में पे थोड़ा लेडीज है का। हाँ नहीं, वो स्पेशली उधर साउथ में फिर भी ठीक है, चेन्नई वेन्नई में थोड़ा होगा, महाराष्ट्र तो नंबर 1 पे, तो अच्छा है। मतलब जो प्रॉब्लम फेस की कि लेडीज को थोड़ा डोमिनेंट रखते हैं मैन, तो वो उनको उनके फ्रीडम राइट्स का नहीं पता उनको लेडीज को, तो वो उसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे करा रहे हैं, या उनको कुछ स्किल है तो उसको हम डेवलप करा रहे हैं अंडर द अत्यंत योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई है। और स्किल इंडिया के तौर पर मीन्स है एक, मे बी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया की चीज चलती है, तो हम उनको कोर्सेज कराते हैं जो लेडीज इंटरेस्टेड हैं, उसके ब्याह पर वो लोग कोई अपना घर बैठे, यू कैन से एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं घर बैठे लेडीज को, हाँ हाँ अपना हाँ कोई भी हाँ। काम, जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई, या सुनो पिकल्स जो शादियों में जब खाते हैं ना पापड़ बाद में, तो वो ऐसे कुछ जो भी बना सकते हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग देने, उसके ब्याह पे वो लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो अपने सामान को मार्केट में बेच सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा है कि थोड़ा सा रूरल एरिया को हम डेवलप करें और अच्छे से। और सर और आई उसके थिंक साथ ऑल दीज गुड डीड्स ऑफ एनिमल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन एड, डिजास्टर रिलीफ, ये हम्म सब पे ऑफ करेगा आपको end में, क्योंकि यही तो बेस बनेगा, इसके बाद आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा जिसके बाद यू कैन बिल्ड अपॉन द फुटबॉलिंग स्टफ, बिकॉज फिर काफी लोगों को पता होगा कि हाँ दिस फाउंडेशन हेल्प्ड अस, सो मे बी वी कैन हाँ, ट्रस्ट देम, और फिर ऐसे इंटर स्टेट मिला के वी कैन मेक अ गुड टीम या। अरे डेफिनेटली कह सकते, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा नाम हो, फ्रेंकली अभी तक हमने है कि हमें काम करना है, बिकॉज हम्म सोसाइटी से हमें बहुत कुछ मिला। फुटबॉल की बात करता हूँ कि मैं फुटबॉल के लिए इतना कर रहा हूँ या जो भी है, तो ऐसा नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या मेरे को कंपटीशन है कि भाई चुको ने ये करा मैंने नहीं करा, यही करा, नहीं। ऑब्वियसली। ये हमें खुद लगता है कि हमें वहां से मिला है तो हमें देना चाहिए रिटर्न वापस की, देना अगर चाहिए, हमें हाँ। हाँ वापिस देना है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे बाद भी कोई आए, ये तो है नहीं कि हमारा खत्म ही हो जाएगा चीजें, तो ये है। इसके अपार्ट में हम लोग के बच्चे जैसे फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं या ऑर्फन वाले बच्चे हैं, तो उनको भी हम पूरा मौका दे रहे हैं कि अपनी एजुकेशन कराए, तो उसमें हम पूरा उनका बेयर करते हैं कि भाई आपको जितना पढ़ना है, कोई लिमिट नहीं, आप पढ़िए, और पढ़ने वाले होने चाहिए, तो हम पूरा खर्चा आपको उठाएंगे। और बराबर। गर्ल्स है बॉयज सब, कोई वो नहीं है इसमें, तो इस तरह से हम लगे हुए हैं। बाकी
होप फॉर द बेस्ट, यही हमारा है कि चलो कुछ तो हो। एंड सभी का सिलेक्शन तभी नाम रखा हुआ है कि कोई हाँ, हम सभी भी का करें सिलेक्शन, तो भी दैट्स अ गुड या नेम, या सिलेक्शन दैट प्रेजरमेंट फॉर ऑल। या प्रेसिडेंट सर। ऑल्सो सर आई थिंक और एक है दिल्ली में, दिल्ली एफसी और मिनर्वा, वो भी बहुत कर रहे हैं मैंने देखा। एज मच एज आई ये नो देयर डेफिनेटली। डूइंग अ लॉट, नहीं मतलब दिल्ली में वो कम्युनिटी बन सकता है, दिख रहा है वो फुटबॉल के साथ साथ बिल्ड होने वाला। नहीं, एक्चुअली वो बनाना ही जरूरी है। हम्म डेफिनेटली जो इन दोनों के अगर आप ऑनर देखेंगे, मिस्टर रंजीत बजाज, ही इज हम्म वेरी क्लोज टू मी एंड मैंने हम्म बहुत कुछ सीखा है उनसे। एंड जब मुझे हमें कई बार होता है, देखो हर किसी का अच्छा टाइम बुरा टाइम आता है। जब हमारा था थोड़ा सा पीक अच्छा टाइम नहीं था, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। डेफिनेटली आई रियली एडमायर, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दिल्ली एफसी भी उन्हीं का ही एक तरह से है, वो चला रहे हैं। इवन एक हिमाचल में भी टेक्टो है, अगर आपने सुना होगा, तो वो भी वही चला रहे हैं। तो हम लोग भी देखो फ्रेंकली किसी ना किसी से आइडिया लेके ही चलते हैं, हर चीज़ हमारी तो नहीं होती। बट हाँ, हमें कोई चीज़ दिखता है कि हाँ ये एनजीओ काम कर रही है, फिर हम सोचते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन है फुटबॉल के लेके। तो उसके साथ में हम्म, भी कुछ क्वेरीज आती हैं दूसरे स्पोर्ट्स की, जैसे कि हमारे इंडिजियस गेम है इंडिया के, लाइक गतका सुना होगा, कबड्डी। खो हाँ। खो, कबड्डी। तो हम हम्म, सोच रहे हैं कि अभी तो इनको कर सकते हैं, लेकिन अभी प्लानिंग नहीं है। बिकॉज अब जब से मेरे रिकॉग्नाइजेशन मिला मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट ऑफ एस एनएसपीओ का, जैसे कि आप कर सकते हो, वो स्पोर्ट्स प्रमोटिंग एक होता है। तो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करें, क्योंकि ज़्यादा जगह पर करें, क्योंकि इसको मैं ही लीड कर रहा हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइमिंग का वो रहता है। तो एक्चुअली इसीलिए हम लोग एक अच्छी टीम को सर्च कर रहे हैं। बहुत लोग अप्रोच करते हैं तो उनका अलग ही विजन होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर आपका प्लेटफॉर्म इसमें मेरी कुछ हेल्प कर पाए, तो डेफिनेटली जो श्योर श्योर, रियली आई में होप। पैशनेट हैं इस काम में, तो वो आए, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, या मेरा डिटेल आपको लिंक्डइन का शेयर कर दीजिएगा। तो कोई अगर करना चाहे तो मैं चाह रहा हूँ एक टीम बने, क्योंकि टीम वर्क ही होता है। तो अगर हम्म। सोसाइटी जब सब मिलके करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। या किसी को अगर किसी जो हमारा विजन है, जो जो हमारे हम पॉइंट्स काम कर रहे हैं जिनके ऊपर, अगर वो मान लीजिए वहाँ पर हमारी टीम नहीं है, सपोज केरला में नहीं है या हम्म। साउथ में कहीं नहीं है, तो वहां पर अगर ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो वहां से कोई खुद बंदा उठे कि हाँ जी मैं आपसे यहाँ का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर बनना चाहता हूँ, मैं पूरे स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को करना चाहता हूँ, मेरे पास टीम है, आप हमें सिर्फ एक एफिलिएशन दे दीजिए, वो हम दे सकते हैं। हाँ और हाँ इससे कोई हाँ। चार्जेबल नहीं होता। बहुत से लोग चार्ज करते हैं कि आप ये करो, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या हो, मेन है कि हमें काम करो। मेनली इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर ब्रांड मनी, राइट? इट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू डू गुड, और नहीं, इसके लिए ब्रांडिंग का पैसे तो नहीं मैं है। ब्रांडिंग का तो नहीं मैं बोलूंगा। ब्रांडिंग तो वीएफए इज नॉट अ ब्रांड, इवन आई एम नॉट अ ब्रांड। बट ये है कि अगर हम्म। कुछ काम कर रहे हैं तो पर्सन खुद ही ब्रांड है अपने आप में। बट हाँ, अगर कुछ करते हैं तो अभी ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए हमको कि ब्रांडिंग के लिए, अगर ब्रांडिंग के लिए करना तो आई थिंक दैट इज डिफरेंट प्रोफेशन में जाना चाहिए। हाँ, वो अलग सोशल लेन है। वर्किंग तो हाँ वो अलग है। ब्रांड, अगर ब्रांडिंग में आपको जाना है कि आई वांट टू ब्रांड, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ या मॉडलिंग लाइन में जाओ, वो बहुत अच्छा लाइन है। सबको क्रेज होता है कि मॉडल बने वो करें, वो होता है ब्रांडिंग के लिए। ये सोशल वर्क है, तो सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हो। सर्व मीन बराबर। से सर्वेंट, हम्म। सर्वेंट हो आप। तो बराबर, हाँ। आपको जितना लीनियंट होना है वो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिटिसाइज भी सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी आती हैं। इसमें क्या नेगेटिव होगा क्योंकि सर अभी? मतलब आई डोंट, हो, व्हाट होता है व्हाट यू इसमें। आर डूइंग, हाउ कैन दैट बी? कौन अगेंस्ट हाँ जाएगा नहीं, इसके? वो नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप अच्छा काम भी करेंगे तभी लैग पुलिंग होता है। लोग तक इनका कुछ अपना डेफिनेटली इनका कुछ अपना लालच है, या कुछ सोच रहे हैं कि इनका कुछ और मीनिंग है, या डोनेशन चाहिए या ग्रांट चाहिए। बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ होती है, हर एक का एक लिमिट होता है। हर किसी का पॉकेट सम अमाउंट अलाउ करता है। तो उसके लिए हम कई बार क्राउड फंडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो इतना नेगेटिव आता है। बट हमने कभी किसी से मांगा नहीं कि डोनेशन के लिए, हम खुद ही करते हैं। तो हम्म। जैसा भी हमें रहता है, क्योंकि हम लोग उस लाइन में नहीं है, बट ये फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। तो जो उस एरिया के लोग होते हैं तो नेगेटिव डालते हैं, उसमें से ओके, या श्योर। सो या ऑल्सो सर, मैं देखा था कि आप यू एजुकेटेड पीपल इन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, लॉ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। सो वी आर यू ऑल्सो ट्राइंग टू स्टार्ट एन अकेडमी ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे आप बाकी से अलग फुटबॉल रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड एजुकेशन भी देना चाहते हो? या देख, एक्चुअली मेरा विजन है कि अभी भी अगर जैसे जो बच्चे होते हैं कि हम प्लेयर, हर कोई फुटबॉल या हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए नहीं आता। क्योंकि देखो सबका फिजिकल या मेहनत भी नहीं कर पाते, मेहनत देखो भी हर नहीं तरह कर के लोग पाते आते सर। हैं, या दैट इज रियलिटी। हाँ क्योंकि हाँ। प्लेयर बनने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता। तो उसके लिए मेरा प्लानिंग था, मेरा ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत टाइम से सोचता था, अराउंड आज से 10-15 साल पहले, कि फिटनेस भी या स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, तो उसमें सिर्फ प्लेयर ही नहीं है, ये कोच और रेफरी, ये तीन चीज ही नहीं, बहुत चीजें होती हैं, लाइक मैनेजमेंट,
उनके लॉज, जर्नलिज्म, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, Okay, तो जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उनको कोई प्रमोट करे, कमेंट्री करे, है ना, या हम्म, कुछ फिटनेस के कुछ छोटे छोटे कोर्स कराएं यार। ये ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन एनीबडी कैन डू दैट। इट्स एन तो मैं सोच इकोसिस्टम। हाँ हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि इकोसिस्टम बने, अगर वो चीज बनेगी उससे एम्प्लॉयमेंट आएगी, सबसे मेन बात तो और लोगों को कम्युनिटी। दो पैसे मिले, कम्युनिटी बनेगी हमारी। तो एक जो थोड़ा माइंड सेट है ना कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता, तो अभी तो मोदी जी ने यार बहुत, मोदी जी आई डोंट नो किसने दिया, लेकिन वो दिया ना कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, वो बहुत अच्छा है। पहले होता था पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसा कुछ था, हाँ तो हाँ। आजकल ये अच्छा है। तो इसलिए मेरा एक थोड़ा स्पोर्ट्स को एक अपना हब बनाया जाए। बट हाँ, अभी मेरा कोई ऐसा सोचा नहीं है कि हम खुद का एक यूनिवर्सिटी लॉन्च करें। बट हाँ, अगर कहीं से कुछ सपोर्ट मिलता है तो हम लोग सोच सकते हैं इस बारे में, बट अभी तो नहीं है मेरे माइंड में। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही विजन है कि जो हम इंडियन फुटबॉल का है कि किस तरह से इसको करें, और 2030 के बाद जो भी हो वर्ल्ड कप, तो उसमें हम लोग का बहुत अच्छा पोजीशन रहे। डेफिनेटली अभी बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हैं, हमारी टीम भी कर रही है, हम्म। बट जो वो टाइम पे चाहिए तो उसके लिए हमें टैलेंट हंट प्रोग्राम्स करने की जरूरत है, स्काउटिंग करने की जरूरत है। तो ये जरूरी है, तो मेरा भी फोकस उसमें है। आई फील अपना देश सर बड़ा है ना, उसके लिए द रीजन इसके टैलेंट पूल काफी बड़ा है कि लोग बहुत है जिनमें टैलेंट है, बट वो लोग इतने दूर दूर बिछे हुए हैं ना कि उन्हें ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप इंग्लैंड को देखो, महाराष्ट्र के साइज का है, महाराष्ट्र से छोटा है हम्म, इनफैक्ट, तो वहां पे चलो हम्म, टैलेंट, मतलब लोग कम होंगे टैलेंटेड, बट वो इतने कम जगह में है कि वो भी मुंबई पुणे ट्रैवल करोगे अब तो कितना ही मुश्किल है ना। नेशनल अगर आपको क्लब के लिए ट्राई करना, कोई भी मुंबई पुणे तो जा ही सकता है अगर उसे ये इतना प्यार है डेफिनेटली। फुटबॉल से। सो लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, फिर ईस्ट में शिलोंग है, फिर साउथ में केरला है। वैसे इट्स ऑल बिछड़ गया है, कह सकते हो आप, बिखर गया, सॉरी। ये बहुत ज्यादा नहीं, इसका आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसे किस साइड से देखते हम्म। हैं। मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव साइड से देखता हूँ कि टैलेंट डेफिनेटली है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इवन, मैं नहीं कहूँगा किसी पर्सन की नहीं बनती, ये ऑर्गेनाइजेशन की बनती है। मैं इसमें डेफिनेटली नाम भी लूंगा, एएफएफ का थोड़ा सा लैक है इसमें, कि अगर वो स्काउटिंग के हमने बहुत लोगों ने कोर्सेज किए, हम भी थे उसमें से, बट ओके। उसके बाद क्या, चलो आपने कोर्स किया, आफ्टर दैट क्या करेंगे आप? कुछ नहीं है, वो खाली बैठे कोर्स लेके। तो कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं मेरा करेगा क्या? ओके, नहीं हाँ हाँ नहीं, हाँ। सजेशन मेरा ये है कि जहाँ वहाँ पर लोकल एकेडमीज अगर हो, वहाँ पे स्काउट्स अपॉइंट किए जाएं। इवन हर स्टेट में स्टेट एसोसिएशन है, जो आप लोगों ने इतने स्काउटिंग के वर्कशॉप और लाइसेंस करवाए हैं, तो वहाँ पर उनको एक काम दे दें। अब मान लीजिए आप मुंबई में बैठे हैं, महाराष्ट्र में कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज होंगी, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन होंगी, इतने लोगों ने किया, तो अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल बॉडी में एक नहीं तो दो दो भी असाइन कर दिया आपने स्काउट्स, तो वो लोग वहाँ पे लोकल बच्चों को देख सकते हैं, तो उनके बेसिस हाँ। पर टैलेंट एंड प्रोग्राम बना सकते हैं। आई नो कि कहने में लगता है, लेकिन बहुत जरूरी है ये। तो इसमें लैक तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जो हमारा एएफएफ है, वो लोग अभी काम तो कर रहे हैं, बट उनका कोई विजन नहीं है कि व्हाट इज देयर फ्यूचर प्लानिंग है। तो कहते हैं कि हमारे, चलो वो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा अलग हो जाता है वो, बट अगर वो काम करेंगे ठीक तो सही रहेगा। हम्म। मेरा सिंपल है कि आप ये तो कोर्स ही ना कराओ, अगर आप करा रहे हैं तो आप मेक श्योर कि वहाँ पे कुछ वो काम उनको तो हो उसका। एम्प्लॉय काम मिले उनको। अब बराबर जैसे इतने बराबर। एवरी ईयर इतने लाइसेंस कोचेज निकल रहे हैं, हम्म। मैं कहूँ डी लाइसेंस तो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, मैं कहूँ इतने हाँ, तो जैसे लोकल ट्रेन में मैं छोड़ दिया ऐसे डी लाइसेंस निकलता है, फिर सी हो गया। तो मेक श्योर है कि आप ये भी तो देखो ना अपने सर्वे के अकॉर्डिंग, ईएफएफ वाले, कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर वो लोग मान लीजिए आप लाइसेंस, एग्जांपल मेरे पास लाइसेंस है, मैं काम नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ क्या वो लाइसेंस मेरे लिए वर्थ है उसका कोई? तो या तो लाइसेंस कैंसिल करिए या फिर उसको कुछ मौका दो कि अकेडमी दो, या क्योंकि वो फाइनेंशियली इतना खर्चा मांग लेते हैं, तो कोई नॉर्मल पर्सन बेयर नहीं कर पाता उसको। ऑल्सो एक सिंपल सेटिंग, मतलब आई नो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, बट व्हाट स्टेट एफिस कैन डू कि लेट्स से कुछ लोग स्काउटिंग अकेडमी है, वो लोग वो स्टेट में वो लोगों को रिमोट एरियाज में भेज सकते हैं, उनको थोड़ा मार्केटिंग करा के दे कैन मेक द स्काउटिंग पीपल। ऐसा नहीं कह रहा कि सब कुछ स्टेट को ही करना है, लेट्स से जो ग्रेजुएट्स है अकेडमी के, हम्म, वो एरियाज में जाके एडवर्टाइज कर सकते हैं अबाउट अ ड्राइव। लेट्स से मुंबई में एक नॉर्थ मुंबई में होगा, एक बांद्रा के यहाँ पे होगा, और एक साउथ में होगा, ऐसे तीन तीन वो लोग ने रखे। और अगर थोड़ा बहुत एडवर्टाइज वगैरह किया बाय गोइंग टू अदर अकेडमी, तो वो अकेडमीज अपने नेशनल या स्टेट एफए के इसमें भेजेंगे, और वो स्काउट उन्हें बराबर स्काउट करके वो स्टेट एफए को भेजेगा, फिर वो संतोष ट्रॉफी में वही तो काम आएंगे बाद में। नहीं एक्चुअली आई टोटली एग्री विद यू, इवन मेरा भी ऐसे ही प्लानिंग था। बट जब कहते हैं काम करने की बात आती है, कुछ लोग एक्टिवली इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली मैं इस मामले में दोस्त का नाम लूंगा,
दो नहीं सर, 3 या 4 का नाम लेना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि बाकियों का कोई नेगेटिव है, बट मैंने जिनके साथ काम किया जो मुझे ठीक लगा मैं वो बता रहा हूँ। नंबर 1 पे देखिए चंडीगढ़, फिर दिल्ली, उसके बाद में आपका एक केरला का, इवन महाराष्ट्र का भी। तो ये कोल्हापुर लोग सर, थोड़े अच्छा कोल्हापुर। काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ कोल्हापुर, अंजू तुम्बरेकर आपके वहाँ के हैं, जानते हम्म, होंगे तो मतलब कि ये जो कुछ मैंने नाम लिए हैं, नहीं कि बाकी अच्छे नहीं है, बट ये कि ये लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हमारा जैसे कि हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, एंड उसके बाद में पंजाब तो अच्छा काम कर रहा है। बाकी ये यूटी वाले हैं, यूनियन टेरिटरीज वाले, या बाकी जो नीचे के, तो सबको इक्वल लेके चलना चाहिए। तो मेरा तो इसमें ये एक सजेशन भी रहेगा, अगर कोई मेरी माने तो, कि हम लोगों को ना एक मीटिंग करनी चाहिए हर स्टेट वालों को आपस में, और फिर उसका एक हमें पीरियडाइजेशन, एक प्लानिंग बनाना चाहिए कि व्हाट इज आवर लाइक 1 ईयर का क्या प्लान है। फिर उसके बाद में सब मीटिंग करें एफएफ में कि भाई हाँ, क्या हमारा जो पैरामीटर हमने बनाया था, क्या वो उसके कितना हमने अचीव किया। अगर आप इसे स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, क्या बोलते हैं? तो स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट कुछ नहीं, वो टारगेट दिया है, ये काम करना है। स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, अच्छा। स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट बोलते हैं। अगर आप ये ओके। गूगल पे डालेंगे आएगा। तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि आप देखेंगे कि एक टारगेट हमें ये काम करना है, टोटल दे दिया कि आपको 100% काम करना है। तो उस ये जो बर्न डाउन चार्ट है उसका काम ये रहता है कि कितना काम रह गया है, कितना टाइम रह गया। तो वो एक तरह से उसमें करता है। वैसे ये थोड़ा आईटी वाले यूज करते हैं इस चीज को, हाँ। बट अब हम लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल ऐसा, तो हमने भी हर जगह पे और थोड़ी नेटवर्क जरूरत बना ही भी है लिया है। सर, थोड़ा आईटी का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, नहीं नहीं, मैं वो मैं रियली बोलता हूँ कि आईटी वाले आए, बट वो कोचिंग में मैं नहीं कहूंगा आए, वो उनका पर्सनल वो है, बट वो लोग आए एज अ मैनेजमेंट में, वो थोड़ा हम्म, गाइड करें, थोड़ा आईटी का नॉलेज। बराबर कोचिंग में बराबर। आना है तो मोस्ट वेलकम वो आए, बट कोचिंग थोड़ा सा अलग रहेगा। बाकी अगर वो आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, किसी को वो नहीं कहते, हर कोई आए, कोचिंग नहीं। में वेलकम है सबका। बट ये कि मेरा मेक श्योर है कि कोचिंग में कोई, इवन हम, मैं खुद अपनी क्लिनिक चलाता हूँ जतिन त्यागी के नाम से, तो उसमें जो कोचेज आते हैं हम उन्हें एजुकेट करते हैं, कि कोच एजुकेशन जिसे बोलते हैं। ये एफएफ नहीं है, मेरा खुद पर्सनल लेता हूँ मैं, कि भाई कैसे करना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनको मोल्ड पॉलिश करना है, मोल्ड करना है कि क्या आजकल है, तो उनको अप टू डेट करते हैं। तो यू गिव और देम अ इसी डिग्री तरह क्या से, एट द एंड? आप उनको डिग्री ना देते हो, ना नॉट डिग्री, सर्टिफिकेशन? नहीं डिग्री कुछ नहीं देते, हाँ यू सर्टिफिकेशन देते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हो, हाँ हाँ। प्रैक्टिकल देते हैं। देखिए हर चीज को सर्टिफिकेट करेंगे तो हम लोग कोई, वी आर वही आई एम तो। नॉट अथॉरिटी किसी को जॉब दे पाऊँ, बट ठीक है हम उसको एक तरह से, यू कैन से स्किल डेवलपमेंट कोर्स, छोटा सा स्किल कोर्स, यू कैन से हम्म, कैप्सूल कोर्स, कुछ बराबर भी बोल बराबर। सकते हैं हम, ये वर्कशॉप हो गया ये कह सकते हैं। बट ठीक है वर्कशॉप। उसको पता रहे ना आजकल हो क्या रहा है। अब हम्म, मान लीजिए किसी ने 2010 में डिग्री किया अपना, 15 में उसने कोर्सेज किए, उसके बाद तो कुछ नहीं कर रहा वो, तो वो बराबर। करे। इवन इस आइडिया को तो एएफएफ वालों ने भी किया है, वो लोग भी रिफ्रेशर के नाम से कोर्सेज करा रहे हैं, तो अच्छी चीज है वो। वो अच्छा है, हाँ। हम्म, जब तक वो चीजें होंगी तभी इम्प्लीमेंट होगा। तो दैट्स इसी तरह ग्रेट से सर। हम पीएफए में भी पाठशाला चलाते हैं। तो जैसे इसमें चीजें होती हैं कि कोई अगर अपना दिन में कोई काम करता है, नहीं पढ़ पा रहा जैसे, तो इवनिंग में अपने जाके कर सकता है। मतलब वो नहीं समझा मुझे। पढ़ाई चल रहा है हमारा। अ, ये जो मैंने जो पहले बताया वो हमारा था। एक हम पीएफए का पाठशाला कैंपेन है, उसमें कि जैसे किसी को पढ़ना है अगर, तो हाँ। जिस दिन में कोई नहीं पढ़ पा रहा, वो वर्किंग है कोई भी, तो वो इवनिंग में इवनिंग क्लासेज यू कैन से कर सकता है। वाह वाह, ये तो अच्छा है। वो भी हम लोग, वो हमारा प्लानिंग में है, अंडर इन प्रोग्रेस में है वो चीज़ अभी, अच्छा। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पर्सन भी चाहिए ना जो पढ़ाने वाला हो, तो उसके लिए सब देखना पड़ता है। बट ये प्लानिंग है हमारा, सो काफी बाकी चीजें देखते हैं। अभी आपकी ग्रोथ में चालू है। सो नहीं अभी के हमारा लिए तो प्लानिंग है, नेक्स्ट हमारा विजन आपका प्लानिंग वही पूरा है ना, रेडी है। एजुकेशन में और एक्सपांशन इनटू मल्टीपल स्टेट्स, यही है या ना अभी अभी प्लानिंग तक? हमने पूरा प्लानिंग कर लिया, बस ये कि हम लोग उस पे बनाकर बैठे नहीं है, हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो रही है। हाँ, प्लानिंग तो चल रही है। ये ऑल्सो सर, एक आखिरी मतलब बात कहनी थी। मुझे लग रहा है हम्म, कि दो अपना, चलो नेशनल टीम तो बढ़ रहा है मुझे दिख रहा है, बट आई थिंक 2030 विल बी द ईयर आफ्टर विच अपना मतलब फटेगा टीम एक्चुअली। 2034 मुझे लगता है वर्ल्ड कप जाएगा, आई चूज टू बिलीव कि होगा वो। फिर आपकी जो अकेडमी है वो तब तक आई थिंक वेल एस्टेब्लिश्ड होगी, जब आप आईएसएल आई लीग में अपने फुटहोल्ड बना के बैठेंगे, जहाँ पे आपकी अकेडमी के लोग ऊपर आएंगे 2030 के बाद, जब तक आपका पूरा सेटल हो जाएगा सब। तो हम्म। क्या लगता है आपको कि नहीं 2030? डेफिनेटली, नहीं डेफिनेटली टू द, अभी तो 8 साल है तो अच्छा विजन है। और ऐसा मेरा ये नहीं कि हमारी अकेडमी मेन है, कि जो हमारा मेन देश है। मेन, हाँ मेन वो आगे जाए, देश का रहे, एंटी जो नेशनल टीम है उसका रहे। दूसरा ये रहता है कि अभी बहुत सारे हैं, मैंने बताया कि हमारा 2030 के बाद तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं अभी जो डेवलपमेंट में काम करने लग रहे हैं।
तो मैंने नाम बताया था आपको, जो दिल्ली एफसी है या वो मनेरवा तो है ही, है, रणजी का 2034 स्पेशल, बैच ही है उनका। हाँ तो हाँ। वो लेके चल रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। एक हमारे फ्रेंड है कलकत्ता में, आबरा मंडल हैं और गोपाल दास हैं, तो वो भी सब, तो वो लोग भी विजन, देखो विजन सब बना रहे हैं, बट है कि कितना एसोसिएशन सपोर्ट कर रही है, तो उसके बिहाफ पे वो लोग कर सकते हैं उसको। बराबर बराबर, राइट सर। हाँ यस। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री कि आफ्टर 2030 कुछ अच्छा ही मिलेगा। या दैट्स गुड टू हियर सर। हम्म, एनीवे, थैंक यू, आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। और ये इंटरव्यू में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने बहुत कुछ बताया मुझे कि हाउ यू ऑर्गेनाइज स्टफ, हाउ यू मेक इट। हम्म, सो एनीवे, थैंक यू फॉर दैट सर। या थैंक यू वेरी मच। चलो, बाय। हैव अ ग्रेट डे, बाय।